from our book Woven Words. Woven Words in 11th English Literature. English Literature, the book Woven Words. The poem Peacock has been composed by Sujata Bhatt, who was an Indian poetess, but she was educated in USA and now she is living in Germany. Sujata Bhatt was educated in USA and now she is living in Germany. She was awarded for her collection Bruni Gem. Bruni Gem. It was the collection Bruni Gem that consists the poem Peacock. Means the Peacock poem is not a separate poem. It is a part of the volume of Sujata Bhatt's Bruni Gem, for which she was awarded the Commonwealth Prize. Sujata Bhatt's description of this poem tells us that although she was educated in USA and now she is living in Germany, but she loves India very much. The title of the poem Peacock shows that the national bird of India is very, very near to the heart of the poetess. The theme of the poem is about the peacock. That is a very beautiful bird. The peacock is such a bird that it has a crest. It has a crest over its head. The peacock has a crest over its head and the tail that is built by quills is called plumage. The peacock's head is decorated with a beautiful crest. The crest is such a beautiful that the peacock seems a very heavenly bird. And the tail of the peacock is also so big and large that it is a collection of quills. It is a collection of quills and it is called plumage. The next thing is that it has the plumage. The plumage of the peacock has eye spots. And the eye spots give the impression of the plumage that there are so many eyes in the plumage, in the tail of the peacock. Thus the structure of the peacock is such beautiful that it cannot be compared to any other bird. So India has granted the national bird
national bird respect to this beautiful bird. And Sujata Bhatt, the poetess who is now living in Germany and has been educated in USA, describes the beauty of the peacock in this poem. The poem is not regular. The writing pattern of the poem is not regular. There is no regular rhyming scheme of the poem, and there are not fixed vowels or consonants in every line. Every line is different in the construction manner. So we can say that this poem is a blank verse poem. The blank verse poem has not a regular rhyming scheme. So this is a poem that is called blank verse poem. Sujata Bhatt describes in this poem the peacock as a beautiful god, the heavenly god, who has descended over the earth from the heaven. She only senses the appearance and the loud call without watching or without seeing the bird, yet she senses that it is the presence of the bird that is attracting to the poetess. The poetess Sujata Bhatt was sitting in a veranda of her house. She was forced to sit and to read concentratedly, meditatively, and not to go here and there by her parents. She was forced by her parents to read the books with full concentration without watching here and there. So she was forced only to devote her time, to devote her mind in the book. And it was time. Suddenly the poetess hears a loud call, the sharp loud call, here referenced for the peacock's loud shrill. That is familiar to the poetess. The poetess is familiar to the loud voice of the peacock because she loves the peacock and she knows how peacock thrills, how peacock produces loud voice, and she guesses that it is the peacock. Next, first of all, she only hears the loud call. Next, when the peacock is descending from the peepal tree, she cannot see the scene, the appearance of the peacock, but she can guess that it is the flesh. It is the flesh of bluish or greenish color. That is turquoise. That is the turquoise color. That is the Firozi color. And she guesses, she senses, she confirms that it is the presence of that beautiful bird, the peacock. And then she senses, she guesses, and she confirms that the peacock is moving its beautiful neck. That is very slim. It is peacock that is moving its neck. Although the poetess has not watched towards the bird, but she can sense, she can guess, she can confirm with her experience that it is peacock. Then the peacock moves away with a speed, and only she can feel the movement of the tail, and there is no peacock in her presence.
the whole stanza, the first stanza, that is of 8 lines. Of 8 lines, it is not octave. It is not an octave. It is a simple manner. It is not an octave. Octave is the part of a sonnet that was written by Petrarch or William Shakespeare or the Milton or other romantic poets or British poets who composed the poems of 14 lines. That were the Petrarchan sonnets were divided into 2 parts. The first part was called the octave and second part was called the sestet. It is not the octave, but it is a simple structure that is composed by the poetess Sujata Bhatt. The second stanza, that is of 12 lines. It is also not a fixed rhyming, it is full of rhyming scheme. It is a simple structure that can be understood by a simple reader. And next, it is also not a fixed or regular words or lines. We can say that the structure of the poem is not highly, it is of a lower level, middle level. The best poets who composed their poems had a regular rhyming scheme or regular structure or a pattern in their composition. But Sujata Bhatt has not developed a special pattern in her writings. It is only a simple poem, but it is a poem that has the subconscious situation of a mind of people who are devoted in their work. People are in such a tension, in such a condition that they cannot feel the situation of presence of anything clearly. The peacock is the symbol of physical beauty in our surrounding. But we are such suppressed or puzzled from the miseries of the physical world that we cannot really enjoy the beauty of the peacock or the physical world. The first part here we are discussing about the first part. His loud sharp call. The peacock's loud sharp call seems to come from nowhere. The poetess clearly tells us that it is not sure from which side the loud call of the peacock is arriving. And next, then a flash of turquoise. Then it was not sure from which side the loud call was coming. Then a flash of turquoise. Then it was the time that there was a flash. Flash means light. The sensation of light of turquoise, greenish and bluish color, mix of the firozi color. The firozi color. इसको firozi color. If it is firozi color, turquoise means firozi, that is full of greenery and bluish color. The poetess only feels the flash of turquoise, that is firozi color, in the peepal tree. The slender neck arched away from you. The word you here referred for only the poetess. The style of the poem is autobiographical because the poetess uses the word I and the you, second person, is also used for herself. The style is autobiographical. The poetess tells us that the slender neck arched away from you. From you means the person who is present there. The person who is present there will feel that the slender neck of the peacock arched away.
It is a metaphorical word. Arched away. Why does the poetess use the word arched away? The poetess uses the word arched because the peacock has a crest, and arched, the decorated, the gate that is covered with arch. It is called arched. The gate that is covered with arches, it is called arched. The peacock's head is also covered with a crest. The peacock's head is also covered with a crest. So the poetess uses the word arched away. The slender neck of the peacock is slender, and that is moving, but it is covered with the crest. It is covered with the crest. So the poetess describes in a way that the slender neck arched away from you. The slender means thin neck will move away from you, means from the spectator, from the people who are present there. As he descends means as the peacock descends from the people tree. The peacock, and as he darts away means as he goes away with a speed. Goes away with a speed, darts away very speedily. So when it goes away with a speed, a glimpse of the very end of his tail. It means the spectator, the present person, can see only the last part of the tail, and the whole appearance of the peacock will not be seen by him. The first stanza we can conclude in Hindi, we can translate in Hindi that his loud sharp call, his means उस मोर की तेज जो आवाज़ है, मोर की तेज जोर की जो आवाज़ है, वो ऐसी प्रतीत होती है टू कम फ्रॉम नोवेयर, वो कहीं से नहीं आ रही. मतलब कवित्री ये बता रही है कि जब आवाज़ आ रही थी तो कवित्री को सुनाई नहीं दे रहा था, कवित्री को कन्फर्म नहीं था कौन सी दिशा से आ रही थी. द साउंड ऑफ द लाउड साउंड ऑफ द पीकॉक वॉज ओनली इकोइंग, only resounding in the environment, and she only could guess that it was the loud voice of the peacock. पहली और दूसरी लाइन ये बताती है कवित्री को पता नहीं था कि किस दिशा से मोर की आवाज़ आ रही थी. Then a flash of turquoise in the peepal tree. उसके बाद में केवल एक कौंध, एक प्रकाश की चमक, एक फ्लैश मीन्स प्रकाश की चमक वहाँ पर दिखाई दी. टर्कोइज मीन्स हरे और नीले रंग से मिश्रित, जिसको हम फिरोजी कलर कहते हैं. हरे और नीले रंग की मिश्रित केवल एक चमक दिखाई दी इन द पीपल ट्री, पीपल के पेड़ में. यानी कवित्री को पहले ये पता नहीं था कि मोर की आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन केवल अचानक कवित्री जो है केवल और केवल एक चमक महसूस कर पाई. उसको मोर दिखाई नहीं दिया, मोर के रंग की आभा, उसकी चमक, उसकी कौंध जो कि हरे और नीले रंग से मिश्रित थी, जिसको हम फिरोजी कलर कहते हैं, वो केवल महसूस हुई, कवित्री को केवल महसूस हुई. तब द स्लेंडर नेक आर्च्ड अवे फ्रॉम मी एज ही डिसेंड्स. कहने का मतलब ये है कि जब मोर उतरता है किसी पीपल के पेड़ या किसी भी पेड़ से उतरता है, तो मोर जब उतरता है तो अपनी गर्दन को मोड़ देता है, लेकिन उसकी गर्दन को मेहराबदार का, आर्चड का है. आर्चड क्यों कहा? आर्च का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है मेहराब. मेहराब का मतलब कवर्ड विद ब्यूटीफुल थिंग्स, जो सुंदर चीज़ों से ढका रहता है उसको मेहराब कहते हैं. जो कोई गेट नुमा कोई चीज़ होती है, जो दरवाज़ा किसी सुंदर चीज़ों से सुसज्जित होता है, ढका रहता है, उसको मेहराब कहते हैं.
और यहाँ पर आर्च्ड अवे जो प्रयोग किया गया है, ये मेटाफोरिकल वर्ड है। ये कवयित्री ने मोर की गर्दन के लिए किया है, क्योंकि मोर के सिर के ऊपर क्रेस्ट होती है, कलंगी होती है। मोर के सिर के ऊपर क्या होती है? कलंगी। ये इसको क्रेस्ट कहते हैं। तो मोर के सिर पर कलंगी होने के कारण कवयित्री ने उसकी गर्दन को मेहराबदार कहा है, मोड़ने को भी मेहराबदार तरीके से मोड़ा है। तो मोर की गर्दन जब उतरेगा, यू का मतलब कोई भी दर्शक, यहाँ कवयित्री खुद के लिए प्रयोग कर रही है, यू का मतलब खुद के लिए कर रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब देखेगा तो मोर जो है केवल उतरेगा किसी भी पेड़ से तो अपनी गर्दन मोड़ करके उतरेगा, वो गर्दन जिसके ऊपर कलंगी लगी हुई है। एंड एज ही डार्ट्स अवे ए ग्लिम्स ऑफ द वेरी एंड ऑफ इट, और जब वो तेज़ी से सपट्टा मार के जाएगा, डार्ट अवे का होता है तेज़ी से जाना। जब वो झपट्टा मारता, मोर का शरीर बड़ा होता है, जब वो तेज़ी से जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई हवा का झोंका आ गया, इसलिए डार्ट शब्द का प्रयोग किया गया। जब वो झपट्टा मार करके निकलेगा तो केवल और केवल आपको पूंछ का सिरा दिखाई देगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि कवयित्री पूरी तरह से मोर को नहीं देख पाई। कवयित्री ने केवल पहले मोर की आवाज़ को सुना था, जिसका भी पता नहीं था कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। फिर उसको केवल एक प्रकाश की कौंध सुनाई दी, प्रकाश की कौंध दिखाई दी, जिसमें हरे और नीले रंग का मिश्रण था, जिसको हम फिरोजी कलर कहते हैं। उसके बाद कवयित्री को केवल और केवल उसके जाने का पता लगा कि वो वहाँ से उड़ गया है तेज़ी से, लेकिन उसमें भी केवल उसकी पूंछ का अंतिम सिरा दिखाई दिया। ये फर्स्ट स्टेंजा पूरा हो गया। ये आप स्टेंजा 4 लाइन का स्टेंजा होता है, लेकिन यहाँ पर कोई राइमिंग स्कीम और कोई स्ट्रक्चर, मतलब परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। ये केवल मात्र सिंपल एक तरीका है, एक मतलब ये प्रोज राइटर्स की शैली होती है। पोइट्री राइटर्स जो होते हैं वो इतने वो नहीं होते, लेकिन एशियन, हम सर्क्यूमस्टेंसेस की बात करते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो राइटर्स हैं, जो पोइट्स हैं, उनका तरीका हमारे यहाँ के एशियन जो राइटर्स हैं उनसे भिन्न है। यहाँ के राइटर्स जो है बहुत ऐसे अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन बहुत सारे कवियों की, जैसे सुजाता भट्ट की बात है, तो प्रोज स्टाइल को अडॉप्ट करते हुए पोइट्री लिख रही है, इसलिए यहाँ कोई परफेक्ट स्टाइल नहीं है। लेकिन ये स्टेंजा इस बात को दर्शाता है कि मोर की उपस्थिति है। I was told that you have to sit in the veranda. The poetess says that why was she sitting and why could she not watch? Why she could not watch the appearance of the beautiful bird that was loving bird of her? She clearly says that she was instructed. Told means instructed. She was told means she was instructed that she have to means had to sit in the veranda and read a book. Clearly she was instructed, forcefully instructed by her parents that she had to read a book by sitting in veranda and preferred one of your favorite with great concern. It was the choice of the poetess. Favorite means the choice was clear. It was the choice of the poetess then that she could select any book, but it was clear that she must read the begin to start study inside the book means in the matter of the book. The time the poetess was starting to give her time to give her mind in the book, a blue shadow will fall over you. Style is imperative, yet we can see that the word you here refer to the poetess. The blue shadow will fall over you. When the poetess started her study with concentration, with full concentration, the shadow of the peacock, the shadow of the peacock fell over her. The wind will change direction. The wind will change direction means the wind had changed its direction because it was a big bird and it was a very heavy bird. So the wind had changed its direction. The steady hum of bees. The continuous, steady means continuous, hum means humming sound of the bees means bee insects in the bushes nearby will stop means had been stopped. Second stanza that shows the presence of the peacock clearly, but the poetess was unable to watch the beauty of the peacock because she was
busy in her study. She was forced by her parents to read the book carefully with concentration, and she only felt the sound, she only felt the shadow. In this way, second stanza is also full of illusionment. First stanza shows the illusionment. First stanza shows the illusionment, and second stanza also shows illusionment. We can translate in Hindi in this way. I was told, I का मतलब है कवयित्री. सुजाता भट्ट को was told का मतलब was instructed, उसको निर्देश दिया गया था that you means she had to sit in the veranda, कि उसको बरंदा में ही बैठना था and read a book, और उसको पुस्तक पढ़नी ही थी. ये उसको ड्यूटी दी गई थी, कवित्री को पुस्तक पढ़नी थी. प्रीफर्ड वन ऑफ योर फेवरेट, प्रीफर्ड जो प्रिफरेबली वन ऑफ योर फेवरेट मीन्स प्रिय जितने भी थी, पसंदीदा, उनमें से भी एक उनको पसंद करनी थी, पसंदीदाओं में से एक का चयन करना था. ये कवित्री को कहा गया था, जो डिजायर्ड करती. प्रिफरेबली का मतलब दैट वाज डिजायर्ड बाय हरसेल्फ फ्रॉम हर फेवरेट बुक्स. उसकी जितनी भी प्रिय पुस्तक थी उनमें से उसको खुद को ही डिजायर करना था कि कौन सी पढ़नी, लेकिन उसको पढ़ना था. कैसे पढ़ना था? विद ग्रेट कंसंट्रेशन, उसको पूरे अच्छी तरह क्यों नहीं. वो कवित्री जिस तरह डिस्क्रिप्शन स्टाइल में बात कर रही है, ये बिल्कुल लाइव स्टाइल में बात कर रही है. सच एज जैसे वो सामने खुद मौजूद हो और वो आपको बता रही है. उसका जो तरीका है कवित्री का, कह रही जैसे मानो आपका मतलब है खुद के लिए कह रही है कि इनसाइड टू डिवोट, कंसंट्रेट. इनसाइड का मतलब इन द डीप ऑफ द बुक. कहने का मतलब पुस्तक की गहराइयों में जब अपना ध्यान डुबो लेती है. कहने का मतलब जब कवित्री पुस्तक में पूरी तरह से रत हो जाती है, लग जाती है, बिजी हो जाती है, उसी समय ए ब्लू शैडो विल फॉल ओवर यू. यानी जब आप पुस्तक में अच्छी तरह से लग जाओगे तो एक छाया आपके ऊपर अचानक पड़ेगी, छाया आपके ऊपर पड़ेगी. इसका मतलब कवित्री जब पढ़ाई में लगी थी, जब वो व्यस्त हो गई थी, उसी समय एक नीली छाया कवि का प्रयोग किया. अंदर ग्रीन भी होता है लेकिन ब्लू का ज़्यादा होता है, इसलिए उसके ब्लू. कवित्री इस तरीके से वर्णन कर रही है कि अगर आप भी मेरी जगह हो और यदि आप किसी बरंदा में बैठे हो, मधुमक्खी की आवाज़ तो गुनगुनाने की आवाज़ होती है, बहुत ही भीनी बहुत धीमी आवाज़ होती है. तो यहाँ उसकी आवाज़ बंद नहीं हुई है. आप सोचिए, मधुमक्खियों की आवाज़ बंद नहीं हुई है, केवल मधुमक्खियों की आवाज़ तेज, इसलिए कवित्री को सुनाई नहीं दी है. लेकिन कुल मिलाकर कवित्री कहती है कि मोर की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन मधुमक्खियों का गाना बंद हो गया. अब यहाँ पर ये स्टैंजा, नेक्स्ट स्टैंजा आ गया है. तो द कैट विल अवेकन एंड स्टार्ट्स. द कैट बिल्ली विल अवेकन एंड स्टार्ट्स. विल बी the cat will be alert and stretch means stretch its body. It will make its body long. The cat stretches its body for the victim, to prey any victim. And something the poet's attention has been broken because there is a cat. That is the cat is alert. The cat is alert and it is stretching its body. The peacock's presence is also already disturbed for the poetess. It is the subconscious. The poetess' mind is not full concentrated. It is half concentrated. Subconscious mind situation create and distance means will be raise attention. And if you look up in time is timely. If a person looks up towards the peacock, will might see means can see. Turning away means moving away, flying away as he gets his shirt and violet
violet fringed means corner. Violet fringed with golden amber. Golden amber means color. Amber means color. The golden color, the tail of the peacock. Collect or gather. It is the tail of the peacock that has to be collect or gather for eyes that are always open. Eyes means eye spots. Eye spots that are always open. Why does the poetess uses the word blink for the eye spots? The eye spots are only the plumage of the peacock that have the look of eyes, so many eyes, and it seems that there are so many eyes. Really, there are no eyes. It is the printing of the eyes on the plumage, the last part of the plumage of the peacock. But the poet describes in a way that the beauty of the peacock is enhanced. It is the very beautiful imagery that is described by the poetess, because she wants to establish the beauty of the peacock much higher. हम इसका निष्कर्ष निकालें लास्ट स्टेंजा का. द कैट विल अवेकन, जो बिल्ली है वो जाग जाएगी एंड स्टेज फैलाएगी. इसका मतलब एक जब मोर आएगा, जब मोर उड़ करके आता है, पीपल के पेड़ से नीचे आता है, तो मोर की उपस्थिति को देखते ही बिल्ली चौकन्नी हो जाती है और बिल्ली अंगड़ाई लेने लग जाती है. स्टेज का मतलब अपने शरीर को आगे बढ़ाना, फैलाना. आगे बढ़ाने और फैलाने का मतलब यहाँ पर जो शरीर को स्प्रेड किया जा रहा है उसके अटैक करने के लिए बिल्ली उस पर अटैक करना चाहती है. लेकिन मोर जो है अलर्ट है, और कवित्री कहती है समथिंग हैज़ ब्रोकन योर अटेंशन. मतलब आपका ध्यान किसी चीज़ ने तोड़ दिया. बिल्ली भी यहाँ पर अंगड़ाई क्यों ले रही है? क्योंकि बिल्ली को भी एकदम से मोर ने आकर के डिस्टर्ब किया है. बिल्ली जो है वो अपने और शिकार में थी, लेकिन मोर को देख लिया, उसका भी ध्यान टूट गया, कवित्री का भी ध्यान टूट गया है. यहाँ पर ये जो अटेंशन टूटा है कवित्री के लिए आया है. यहाँ योवर कवित्री के लिए आया है. योवर अटेंशन मीन्स जो पोइटेस सुजाता भट्ट है उसका ध्यान किसी चीज़ ने तोड़ दिया. एक तो बिल्ली की उपस्थिति ने, बिल्ली अंगड़ाई ले रही है, बिल्ली की आंखें वहाँ चमक रही है, बिल्ली अलर्ट हो गई है. तो इस मूवमेंट से, और दूसरा मोर की वहाँ उपस्थिति से, मोर के झपट्टे से कवित्री का ध्यान टूट गया है. एंड इफ़ यू लुक अप इन टाइम, कवित्री कहती कि यदि समय रहते आपने ऊपर की तरफ देख लिया, मोर नीचे से ऊपर जा रहा है अभी, तो मोर को जब आपने एकदम से अगर समय रहते देख लिया तो यू माइट सी, आप देख सकते हो द पीकॉक टर्निंग अवे, मोर को मोड़ते हुए, मुड़कर जाते हुए, उड़कर जाते हुए, गायब होते हुए, एज ही गैदर्स हिज टेल, जो ही वह अपनी पूँछ को समेटता है. या टेल का मतलब प्लमेज से है, क्योंकि मोर की पूँछ नहीं है, एक पंख वाली नहीं होती, बहुत सारे पंखों वाली होती है, उसको प्लमेज कहते हैं. जिसमें बहुत सारे आई स्पॉट्स होते हैं, उसमें आँखों की बनावट होती है हर पंख में, और उनको हम चंदूले कहते हैं. हिंदी भाषा में उनको चंदूले कहते हैं. तो वो चंदूले जो हैं, उन वाले जितने भी पंख हैं, उन सबको जो ही मोर कलेक्ट करता है, एकदम से जो ही सिमटे और मोर वहाँ से गायब हो जाता है. ये टर्निंग अवे का मतलब वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियरिंग. तो जब भी आप अगर समय रहते आपने देख लिया तो मोर की आपको पूँछ दिखाई दे सकती है जो चंदूलों वाली है, और टू शट दोज डार्क ग्लोइंग आइज. आप देखेंगे कि वो जो ग्लोइंग आइज है, ये आई स्पॉट्स के लिए आया है. ये आई स्पॉट जो चंदूले हैं, जो ग्लोइंग चमकते हुए, क्योंकि बहुत ही ब्राइट होते हैं. जो मोर होता है, उस मोर के जो पंख होते हैं उनमें पीछे का भाग में आँखों की आकृतियाँ बनी होती है, बहुत ही शानदार तरीके से बनी होती है, और जो भी अलग अलग रंग उसमें बहुत सारे मिश्रित होते हैं. इंद्रधनुष के से रंग, सतरंग होते हैं उसके अंदर, और जो बहुत चमकीले होते हैं. इसलिए कवित्री कहती है कि वो आँखें, वो गहरी, वो चमकती हुई आँखें क्या होंगी, जो कैसी हैं, वो वॉयलेट, जो बैंगनी रंग की हैं, उसमें
मतलब नीलापन भी है उनके अंदर, हरापन भी है उनमें मिश्रित है, उसको बैंगनी रंग कहते हैं। बहुत सारे रंगों का मिल करके बनता है बैंगनी रंग, उसमें एक रंग नहीं होता बैंगनी में, तो उसमें ज़्यादा नीलेपन का, ज़्यादा नीले का असर होता है उसके अंदर, उसमें और रंग भी होता है, कालापन भी होता है उसके अंदर। तो बैंगनी जो फ्रिंग्ड मीन्स कॉर्नर है, यह फ्रिंग्ड शब्द का जो प्रयोग किया गया है ये मेटाफोरिकल है। फ्रिंग्ड शब्द जो है झालर के लिए आता है। हमारे किसी भी सोफ़ा या किसी भी बेड के ऊपर जब हम कोई चीज़ बेडशीट बिछाते हैं या कवर लगाते हैं तो उसकी किनारे उसकी जो लटकी रहती हैं, लटकन सी, जिसमें सुंदर सुंदर डिजाइनें बनी होती हैं, उसको हम झालर कहते हैं। ऐसे हमारे मकानों के आगे जो हमारे द्वार होते हैं उन द्वारों पर भी हम कुछ चीज़ें लगाते हैं, उनको भी झालर कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये फ्रिंग्ड शब्द का जो प्रयोग किया गया है मेटाफोरिकल है। तो मोर की वो आँखें, वो चमकती हुई सुंदर आँखें, जो काली आँखें हैं, गहरी गहरी आँखें, काली से मतलब गहरी, गहरी चमकती हुई जो आँखें हैं, वो वॉयलेट का मतलब बैंगनी रंग की जो फ्रिंग्ड झालर वाली हैं, यानी उनके ऊपर, चंदुलों के ऊपर, उसके पंखों पर झालर यानी लटकन, उनके ऊपर बहुत सारे पंख, आँखों के चंदुलों में भी ऊपर बहुत सारे छोटे बालों की तरह लटके रहते हैं, इसलिए झालर का प्रयोग किया है। विद गोल्डन एम्बर, और जिसके ऊपर जो एम्बर होता है, जो कलर होता है वो गोल्डन होता है, सुनहरा होता है। यानी मोर के पंखों में जो चंदुले बने होते हैं, जो आई स्पॉट होते हैं, उनके ऊपर भी वहाँ पर रंगीन, बहुत ही शानदार रंगीन, चमकीले, बहुत ही सुनहरे रंग के वहाँ पर झालर नुमा बाल लटके रहते हैं। इसलिए पोइट्रेस यहाँ पर बहुत ही मेटाफोरिकल स्टाइल के साथ में इमेजरी का प्रयोग करती है। इतनी सुंदर पिक्चरल क्वालिटी का प्रयोग किया है, हाँ, कि कविता की जो संरचना है, पोएम की संरचना, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कविता में जो शब्द, जो वर्णन, जो ब्यूटी, सुंदरता मोर के पंखों के लिए, मोर की कलंगी के लिए, मोर के शरीर के लिए व्यक्त की है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतनी महत्वपूर्ण है कि मोर को एक हेवनली बर्ड सिद्ध कर दिया है, और वास्तव में मोर एक स्वर्गीय पक्षी है। तो यहाँ पर वॉयलेट फ्रिंग्ड विद गोल्डन एम्बर, ये जो लाइन दी है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि मोर के पंखों में चमकती हुई आँखें तो है ही, जो गहरी चमकती हुई आँखें हैं वो बंद होती है। जब वो उड़ने की तैयारी करता है तो पहले वो चमकती आँखें बंद होती हैं, वो चमकती आँखें बंद होती हैं जिन पर बैंगनी, झालरदार, चमकीले और बहुत ही सुंदर रंग उसके ऊपर भरे रहते हैं। ऐसी वो चमकती आँखें सिमट जाती हैं। मोर जब भी उड़ता है उससे पहले अपने पंखों को समेटता है। तो यहाँ पर गैदर करने के लिए आया, वो गैदर कर रहा है, इसको इकट्ठा कर लेता है, इनको समेट लेता है। इट इज़ द टेल, यही वह पूंछ है, दैट हैज़ टू ब्लिंक, जिसको गैदर करना, ब्लिंक होता है मींचने के लिए आता है, जिसको क्लोज करते हैं हम। जब आँख को आप बार बार बंद करते हैं, एक बार बंद की एक बार खोली, तो इट इज़ कॉल्ड ब्लिंकिंग। जब आँख को बार बार आप खोल के बंद करना यानी मीचने की प्रक्रिया को, बंद करने की प्रक्रिया को ब्लिंक कहते हैं। तो यहाँ ब्लिंक इसलिए है कि उसको क्लोज किया जा रहा है। वो यही वह पूंछ है जिसको ब्लिंक करना है, मोर की पूंछ को क्या करना है, क्लोज करना है, समेटना है। और फोर आइज, उन आँखों को समेटना है। आइज का मतलब उन चंदुलों को समेटना है, जो स्पॉट की बात चल रही है, पर आई का मतलब आई स्पॉट से है। उन चंदुलों को समेटना है, दैट आर ऑलवेज ओपन, जो हमेशा खुले रहते हैं। ध्यान दें, मनुष्य की आंखें, जीव जंतुओं की आंखें तो बंद होती है, लेकिन मोर की आंखें जो पीछे पंखों में बनी होती है वो कभी बंद नहीं होती, वो हमेशा ऐसा लगता है जैसे खुली आंखें हों। तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार एक इमेजरी का प्रयोग किया है। ये जो पोएम है, पूरी कविता मोर के ऊपर वर्णित की गई है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है। और सुजाता भट्ट क्यों नहीं वर्णन करे, क्यों नहीं लिखेगी पीकॉक पर, क्योंकि वह इंडियन मूल की है, वो भारतीय है। ये कवित्री जब भारत की रहने वाली है तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसके बारे में निश्चित ही वर्णन करेगी। और उसने जो वर्णन किया है बहुत ही अच्छा किया है। जो उसका शब्दकोश है, डिक्शनरी है, बहुत हाई लेवल की उसने प्रयोग किया है। जो इमेजरी का प्रयोग किया है, यहाँ मोर का पर्सोनिफिकेशन किया है। यहाँ पर जब स्टार्ट उसको इससे किया है, हिज लार्ड वॉइस, इस हिज शब्द से आप देख सकते हैं कि मोर का जो वर्णन किया गया है वो पर्सोनिफिकेशन डिवाइस में किया गया। It means the poetess clearly describes and beautifies the peacock as a god, heavenly god। मतलब एक बिल्कुल स्वर्ग के देवता की तरह, जो ऊपर से आसमान से आता है, बिल्कुल उस देवदूत की तरह जिसको हम एंजिल कहते हैं, एंजिल की भांति इसका वर्णन किया है। और वो एंजिल भी क्या होते हैं, एंजिल भी वो हमको परिचय नहीं देते, लेकिन वो हमको मौजूदगी दर्शा देते हैं।
आसमान से आने वाले जो एंजल्स होते हैं, हम इसका दूसरा जो शीर्षक है, अगर हमसे पूछा जाता तो हम इसको एंजिल भी कह सकते थे, एंजिल कह सकते थे। ये एंजिल जो है मोर के लिए आया है, क्यों? बिकॉज मोर जो है वास्तव में एक देवदूत की भांति प्रकट हुआ है, कवित्र ने देखा भी नहीं। ये हमारी सिचुएशन है, सबकॉन्शियस ऑफ माइंड है। जब हम धरती पर लगे रहते हैं, भौतिक गतिविधियों में लगे रहते हैं, तो हम आसमान से, भगवान से जो अच्छे कार्य जो हो रहे हैं, प्रकृति में सुंदर नज़ारे हैं, उनका आनंद नहीं ले पाते हैं। ये सबकॉन्शियस ऑफ माइंड है, अर्ध चेतन अवस्था है, जिसका व्यक्ति आनंद नहीं ले पाता है। तो ये कविता आपके समझ में आई होगी। ये फर्स्ट पोएम है, ये वोवन वर्ड्स की है, जो आपकी इंग्लिश लिटरेचर 11th क्लास की वोवन वर्ड, उसका ये पार्ट है, पहली पोएम है। नेक्स्ट पोएम आपको आगे कराई जाएगी। आज इतना। होगा।